find that amine you are preparing. So if you are preparing the amine, so you have to think that which reactant I can take. For example, amide we have taken and we have reduced with by using the lithium aluminum hydride. क्यों? amide में नाइट्रोजन है, तो आप सी डबल बॉन्ड को अगर सी एच टू कन्वर्ट कर सकते हो तो कर सकते हैं, लाइक दैट. साइनो आल्सो यू कैन टेक आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन इन विच नाइट्रोजन इज देयर, उसको लेके रिडक्शन करेगा तो एमीन मिल जाएगा आपको. जैसे अमाइड हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इफ यू टेक, तो दैट्स हाउ नाइट्रोजन का जो भी हम आपको जो पता है फंक्शनल ग्रुप दैट यू कैन टेक एंड यू कैन synthesize. So one of the important method to prepare this amines is the Gabriel synthesis method, Gabriel Thalmide synthesis. So that we will see. Apart from that, all other methods also we will see. Okay, you can see no presentation, Pooja. Yes, sir. Okay, so this we have seen Hoffman bromide reduction, and next is by reduction of oximes. So by oxime, what is the oxime functional group in which double bond N OH. So to the nitrogen, if OH is attached, which is C double bond N OH. So this is called the oxime. So this oximes also, if you reduce by using lithium aluminum hydride, you don't worry much. So कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, उसके साथ जो एमीन बन सकता है वो लिख देना सीधा सीधा. इसमें सिर्फ कार्बन का नंबर कम हो रहा है इसमें, सो ये पूरा गायब हो रहा है. इसमें जितने भी नंबर्स है इससे जो मिलेगा आपको एमीन, सो आर सी NH2, दैट्स इट. इसके पास कितने हाइड्रोजन होना चाहिए? CH2. अच्छा, इस पे कितने कार्बन कितने नाइट्रोजन है? RCN. सो लिख देना RCN. So N2H2 like that. So that only you will get. You are completely reducing. So reduction, what reagent you want that you can take it. So what you can take here, lithium aluminum hydride and sodium sodium ethanol. So this the combination also you can take as shown. So this is also one of the reducing agent. Sodium combination of ethanol. So this is important. Ethanol is important. Alcohol is important. So free radical mechanism it is that you will study in higher classes anyhow. So by using this also you can reduce this type of oximes. Next, by reduction of alkyl cyanides. By reduction of the alkyl cyanides. So what are the alkyl cyanides? So I will give you the one exercise. Please all of you write that compound and please tell me what is the answer for that one. So I am giving you to the CH3 CH2 C triple bond N cyano. Okay, this is nothing but in exam में इतना पूरा नहीं देगा आपको. CH3 CH2 CN ऐसे दे देगा. Okay, CN gives rise lithium aluminum hydride. So what is the product of this one? Type all of you type IUPAC name of that compound. Lithium aluminum hydride क्या product है? One. Second one SnCl2HCl है, तो क्या प्रोडक्ट है? इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी आप IUPAC नेम क्या है उसका IUPAC नाम लिख सकते हो. वन केस में क्या है? सेकंड. सो वन यू राइट, टू यू पुट एंड राइट. सर फर्स्ट का आंसर ये है सर, सेकंड का आंसर ये है सर, लाइक दैट यू टेल. फर्स्ट स्टेप इज SnCl2HCl. सेकंड मींस उसी का ये एक ही स्टेप होता है एक्चुअली बेसिकली. ओके, H3O प्लस इन दिस वाटर हाइड्रोलिसिस. तो टू स्टेप्स का होता है बेसिकली. We can show in only one equation also. There is nothing wrong. Cyanide, nitriles. So this is a functional group, cyanides. And nitriles also we call propyl nitrile. Nitriles. और ethyl cyanide. अगर ethyl cyanide पूरा प्रोनाउंस कर रहे तो ethyl बोलने का. लेकिन अगर इस फंक्शनल ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कर रहे तो नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, लाइक दैट. नाइट्राइल और साइनाइड. ऑल ऑफ यू टाइप. हैव यू रिटन? ऐश्वर्या, क्या प्रोडक्ट मिलेगा इससे? ये दिखाओ मुझे, और इसको बाद में देखते हैं. ऐश्वर्या, विदिशा, रोहिणी, please type chat message that sir this is the product we get if we reduce by using the lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride.
जल्दी जल्दी. Pooja, have you written Pooja? No, sir. Okay. First one you have written. At least you tell me first one. Vidisha, have you written? Vidisha. Sir, I am writing. Right. This much time you should not take. Rohini, have you written? Please on the camera or type the IUPAC name of that compound. Name of that compound. IUPAC भी नहीं जाने. जो कॉमन नेम आपको लग रहा है वो भी बता सकते हो. ट्राई मिथाइल यमीन. पूजा बोल रही है कि ट्राई मिथाइल अमीन. किसका? ये फर्स्ट केस में बोल रहे हो? ओके. पूजा इज सेइंग दैट ट्राई मिथाइल अमीन. ओके. शी इज सेइंग दैट इस केस में ट्राई मिथाइल अमीन. ओके. और क्या है? Product what you have written, that can you show on the camera and show me what you have written, the product that you show me. नाम छोड़ दो अभी. नेम एंड क्लिएचर छोड़ दो अभी. क्या प्रोडक्ट है वो दिखाओ मुझे. Okay, product you have written correctly, excellent, but name you are saying wrong. Okay, ethyl amine, sir. Rohini is saying that ethyl amine. Ethyl amine. Okay. Aishwarya, what is your answer, Aishwarya? Vidisha is saying propanamine. और सब लोग को ठीक है. यू हैव रिटन करेक्टली. ये इथाइल अमीन किधर से आ रहा है पता नहीं. ऐश्वर्या, आई वांट योर आंसर. ऐश्वर्या, सी पूजा, एक चीज है ट्राई मिथाइल. ट्राई मिथाइल मतलब क्या है? 3CH3 ग्रुप्स होना चाहिए कहीं पे भी. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के ऊपर 3CH3 है. इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमीन. 3 मिथाइल ग्रुप्स होना चाहिए. तुमने प्रोडक्ट तो सही लिखा है बट उसका नाम गलत बोल रहे हो तुम. सो मैंने क्या बोला है? व्हाट आई एम सेइंग दिस. जो भी है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है इधर साइनो में? 1 2 3. इसको भी ले लो. सो 1 2 3. CH3 CH2. और इधर क्या लिखना है हमें? इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगी. उसका मतलब वो है CH2NH2. ये है. कितने नंबर ऑफ कार्बन? इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा. सो इधर हाइड्रोजन से ऐड किया मतलब क्या हो जाए? एक्सेलेंट ऐश्वर्य, यू हैव रिटन करेक्टली. CH3 CH2 CH2NH2. सो ये कार्बन को भी आप इंक्लूड करने का. सो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3. 3 कार्बन मतलब क्या होता है? प्रोपेन होता है. और आप ये निकाल दो और अमीन ऐड करो क्योंकि हमको अमीन ऐड है. सो प्रोपन अमीन. एक्सेलेंट विदिशा एंड ऐश्वर्या, यू हैव रिटन. एंड पूजा, यू आल्सो हैव रिटन स्ट्रक्चर. बट नेम कभी भी आप मिथाइल यूज मत करो. ये क्या है? Yes. प्रोपेन है. दिस इज प्रोपेन है. मिथाइल आपके पास अगर 3 मिथाइल्स है, आप बोल सकते हो ट्राई मिथाइल. कॉमन नेम भी. इस CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं. तो इधर ये 3 कार्बन है बोल के आपको इसको मिथाइल ग्रुप नहीं बोलते हम लोग. ठीक है. सो दैट करेक्शन यू डू. सो दिस इज व्हाट प्रोपेनामाइन इज फॉर्मिंग. सो व्हाट इज सेकंड केस? सेकंड केस में क्या प्रोडक्ट बनता है विदिशा? कैन यू अनम्यूट एंड कैन यू टेल मी विदिशा व्हाट प्रोडक्ट दिस विल फॉर्म? दिस इज द नेम्ड रिएक्शन. सो व्हाट इज दैट नेम्ड रिएक्शन? कैन यू टेल? होप टू दी ऑल ऑफ इट इज क्लियर. हमको रिडक्शन करने का, हाइड्रोजन से ऐड करो. ये सब ट्रिपल बॉन्ड सब जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. सिंगल बॉन्ड करके कार्बन नाइट्रोजन. होप इट इज क्लियर टू यू रोहिणी नाउ. ये भी इंक्लूड करना है आपको. आप ये नहीं, ये निकाल के आप NH2 लिख दिया इसलिए आपको एथाइलामीन मिला. या तुमने प्रोडक्ट सही लिखा होगा, नाम गलत बोल दिया होगा. सो व्हाट एवर इट इज, सो दैट कार्बन आल्सो विल बी देयर. विदिशा, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ फॉर ए व्हाइल? व्हाट एवर इट इज, डोंट वरी, प्लीज unmute. So,
Okay, better you mute only. So what it is here, this reaction is Stefan's reaction. What reaction it is? Stefan's reaction. So Stefan's reaction क्या होता है, जो साइनो वाला पार्ट है, जो साइनो वाला पार्ट है वो आपको आल्डिहाइड कन्वर्ट होता है. सो मैंने इसको सी ट्रिपल बॉन्ड है यही लिया था ना मैंने. तो इसमें पहले इमीन बनता है, देन उसके बाद वाटर डालने के बाद हमको आल्डिहाइड मिलता है. सो द प्रोडक्ट व्हाट यू विल गेट हियर बेसिकली CH3 CH2 3 कार्बन के साथ जो आल्डिहाइड बनेगा वो मिलेगा हमें. सो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ रिएजेंट. तुम LiAlH4 डालो तो ये मिल रहा है आपको, एमीन मिल रहा है. आप SnCl2HCl ये डालो तो आपको आल्डिहाइड मिल रहा है. सो दैट्स हाउ it is. Hope it is clear now. Okay. So that was by reduction of alkyl cyanide. By reduction of alkyl cyanide. So simply by taking the cyano, the number of carbons are how many are there, that many number of there will be. Okay, RCH2NH. Here RC. So this nitrogen is getting the NH2. RC triple bond N. Okay. From where this 4H is coming basically from lithium aluminum hydride. You don't get confusion there. Okay. Simply you write this only. You don't need to write this in examination. In your notes also even. You will put this only. Okay. So if cyanobenzene is taken, so the name of this compound is common name cyanobenzene. If you reduce this one, you will get the benzylamine. This part is completely called benzyl. Benzylamine. We call it as a benzylamine. So next important method is Gabriel phthalimide synthesis. क्या है ये? Gabriel. So scientist name is Gabriel. So this is called the phthalimide. We call it as a phthalimide. So this method is most important. So many times they ask in the examination to prepare the alkyl halide. So this method is used. That to primary. That to prepare the primary amines it is used to prepare primary amines. Reaction is shown below. In examination, so many times it is asked. So it is a named reactions. All of you should practice this one. So what is this one? The name of this compound is phthalimide. What the name of this compound? Phthalimide. In last class, we have seen actually while we were studying about the dicarboxylic acids. So if you remember that one, we have prepared from there. COOH. इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट किया हम लोग, तो हमें मिला था एक्चुअली दिस वन. Okay, if you react these 2 moles of the ammonia, you get here amide. कितने अमाइड्स मिला था हमें? 2 molecules of amide. इसको फर्दर हीट किया, ज्यादा हीट, सो इधर से अमोनिया मॉलिक्यूल निकल गया. क्या निकल गया? NH3 निकल के ये phthalimide बनता था. वो ये NH इससे डायरेक्ट जोड़ता था. So that is only the phthalimide means. Now it is clear what is phthalimide means. Here it is C double bond. Basically it is C double bond. Instead of writing here, if you know this one, this is electrophilic carbon now, NH. Okay. So now how this can be used for the synthesis of primary halide. So ये किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है. इसके पास नाइट्रोजन है, इसलिए हम लोग जैसे अमाइड में ले रहे थे, इसके पास भी अमाइड है, तो इसको प्राइमरी एमिन्स को यूज करने के लिए सिंथेसाइज कर सकते हैं. सो नाइट्रोजन यू कैन ब्रिंग विद दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अल्काइल ग्रुप के साथ इसको अटैच कर सकते हो. वो कैसे अटैच कर सकते हो? देखो, इसको बेस के साथ ट्रीट किया, KOH के साथ ट्रीट किया, तो क्या करेगा इधर नाइट्रो एक बेस क्या करेगा? व्हाट बेस विल डू? बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन. दिस प्रोटॉन, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो OH- दे के पानी जाएगा. सो बेस दिस प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टिंग, H+ इज एब्स्ट्रैक्टिंग. सो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ऑटोमेटिकली क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. लेकिन हमें क्या चाहिए? वी वांट अल्काइल एमीन. सो वी वांट एनी अल्काइल ग्रुप. हमें जो भी लाइक RX एनी. RX ही क्यों ले रहा हूं मैं? RX क्यों ले रहा हूं? क्योंकि RX में R का चार्ज होता है पॉजिटिव, X का चार्ज होता है नेगेटिव. कभी भी आप इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो प्रेफरेबली तुम अल्काइल हैलाइड ले सकते हो. ओके, क्योंकि N के साथ मुझे जोड़ना है, सो R+ चाहिए. सो दैट यू हैव टू टेक केयर. अगर RMgX लिया, इसके साथ R का चार्ज होता है नेगेटिव. कभी भी आपको R एज ए नेगेटिव चाहिए
तो इस केसेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो आप। सो आर प्लस के लिए आर अल्काइल हैलाइड ले लो सिंपली, इसके लिए ये ले लो। अभी आर प्लस क्यों चाहिए, वाई आई रिक्वायर्ड, बिकॉज मुझे एन माइनस के साथ ऐड करना है। सो इफ आई रिएक्ट विद दी अल्काइल हैलाइड लाइक CH3Cl C2H5 जो भी ग्रुप ले रहे हो तुम, सो दैट NC बॉन्ड विल फॉर्म, N or whatever it is forming, an alkyl phthalamide is forming, N is attached to the alkyl group। सो आपने ऐड कर दिया किसको, यू हैव एडेड टू द अल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन को अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया। अभी क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको तो RNA चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए उसके साथ, तो ये ब्रेक करना है आपको। सो यू हैव टू ब्रेक दिस, ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करना है। सो फॉर दैट वन टू वेज आर देयर टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये जो C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड है, उसको हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस, NaOH plus H2 बेसिकली, aqueous NaOH, here you can see aqueous means water भी है। तो वाटर है तो क्या करेगा, NR का साइड पे हमको क्या चाहिए, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, इस साइड OH मिलेगा, OH। ओके, इस साइड H ऐड कर रहे हो, इस साइड OH ऐड कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस मींस दैट ओनली, वाटर ऐड करना ही हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, सो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन N के पास जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ OH इधर जाएगा। वाटर मींस मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, हाउ मेनी रिक्वायर्ड दैट मच विल कम आंसर। So basically you will get the acid and amine. Since you are doing in basic condition, acid फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा। अगर ये भी एसिड चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फिर HCl के साथ ट्रीट करो। सो यू विल गेट द बेंजोइक एसिड, यू विल गेट द बेंजोइक एसिड, डाई बेंजोइक एसिड यू गेट। तो इसको क्या करना है, फिर से अमोनिया के साथ ट्रीट करो, अमोनिया के साथ ट्रीट करो, तो फिर आपको ये मिल जाएगा हीट करने से। सो इट्स ए साइकिल, लाइक कुछ भी वेस्टेज नहीं है आपको। तो दैट इज व्हाट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियली दे डू दिस वे। आपको इधर से एसिड बना दो, फिर से हीट करो, कंडेंस करो, सो बाय दैट यू विल गेट द अमाइड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंडस्ट्रियली, आपको कुछ भी वेस्ट नहीं है। सो व्हाट यू विल गेट हियर, मैंने क्या बोला, इधर दो हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगा, वो H तो इस साइड मैंने ऐड किया पानी का, H इस साइड मींस RN के साथ दो हाइड्रोजन, विच इज द प्राइमरी एलिमेंट। This is the one way sodium hydroxide, by putting you can break this. So another way is there, another way is there. So what is the another way, another way is by putting this hydrogen, ये हाइड्रोजन आप डालेंगे तो हाइड्रोजन, सोडियम एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, नहीं तो हाइड्रोजन डाल के भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो। इसको ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन, ये मीन को दे देगा, RN को दे देगा, और जो NH पार्ट है वो CO के साथ अटैच हो जाएगा। So like that this will happen. So this is what the Gabriel phthalamide synthesis. Now I will give you one exercise. Please all of you do and tell me what compound that will form. IUPAC compound you type. IUPAC of that compound you type. Okay. I am having CO, NH, CO for phthalamide plus C2, H5, C2H5 Br in the presence of KOH. ओके, सो क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसमें से बता दो, एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, KOH। फर्स्ट स्टेप में आपको KOH बोल रहा हूं मैं, सेकंड स्टेप में आप एक्वेस हाइड्रोलिसिस करो, एक्वेस हाइड्रोलिसिस, एक्वेस NaOH मैंने बोला हाइड्रोलिसिस। सो इसमें कौन सा एमीन मिलता है, IUPAC डालो आप लोग सब लोग, IUPAC name I want, what product you will get, that IUPAC name you type, very very important reaction. So whatever I am saying, it is important. Please, you have to take care. Gabriel phthalamide reaction. Gabriel phthalamide synthesis, which is used to synthesize primary alkyl amines. Primary amines. फर्स्ट डिग्री amines को synthesis करने के लिए ये यूज करते हैं। All of you type in chat message. ऐश्वर्या, have you written ऐश्वर्या? क्या प्रोडक्ट मिलेगा इससे? So I get Writing, amine. sir. हाँ, पूजा, have you written? Writing, sir.
लेट अस सी हु विल टाइप फर्स्ट आईयूपीएससी नेम। नेम लिख दो, उसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आपको ये पूरा रिएक्शन भी लिखने का जरूरत नहीं है। इफ यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आपको ये देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, यू राइट, बट स्टिल यू कैन से सिंपली सर दिस विल बी द प्रोडक्ट, कैन से। कैन यू शो मी ऐश्वर्या व्हाट प्रोडक्ट यू हैव रिटर्न। जो भी प्रोडक्ट लिखा है वो दिखाओ मुझे। एंड ऑफ द प्रोडक्ट, विदिशा इज सेइंग इतना मीन, ओके। पूजा व्हाट प्रोडक्ट यू गॉट। और थोड़ा मैं जूम, और थोड़ा जूम आउट करो, और थोड़ा। वेरी गुड। ऊपर क्या लिखा है तुमने, ऊपर ऊपर दिखाओ। इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट भी लिखना चाहिए तुम्हें। और इस साइड इंटरमीडिएट क्या रहेगा, इंटरमीडिएट इन द सेंस फर्स्ट स्टेज में एन का ऊपर अटैक तो होता है ना, वो भी लिखो। एन का ऊपर जो अल्काइल हैलाइड अटैक करता है, एन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप विल अटैच टू द नाइट्रोजन, देन ओनली हाइड्रोलिसिस यू आर डूइंग राइट। तो वो नहीं लिखा है तुम उधर। ऐश्वर्या हैव यू रिटन, ऐश्वर्या। पूजा कैन यू शो योर्स। ऐश्वर्या व्हाट प्रोडक्ट यू गॉट, ऐश्वर्या। रोहिणी, पूजा कैन यू हियर मी, पूजा। Yes, sir. तो व्हाट प्रोडक्ट यू गॉट, जो भी है मुझे दिखाओ ना। तो Can राइट I और share? रॉन्ग। यस ऐश्वर्या, आई एम आस्किंग, कब से बोल रहा हूँ मैं। आप बोल रहे हो कैन आई शो सर। प्रोडक्ट क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मेन प्रोडक्ट चाहिए। आई डोंट वांट दिस। क्या एमीन मिल रहा है, हम तो एमीन सिंथेसिस कर रहे हैं ना पूजा। यस ऐश्वर्या, शो मी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या प्रोडक्ट का नाम लिख दो, नहीं तो इफ यू आर अनेबल टू ऑन द कैमरा। क्या एमीन मिला है तुम्हें, एमीन का नाम क्या है, दिखाओ दिखाओ और दिखाओ। तो वेयर इज अमीन, अमीन किधर है तुम्हारा। ये क्या है इधर। ये क्या दिखा रहे हो, ये आर किधर से आ रहा है। ऐश्वर्या आर किधर से आ रहा है। ऐश्वर्या अनम्यूट करो।
ऐश्वर्या 1 मिनट के लिए अनम्यूट करो ऐश्वर्या। यस सर। आर मतलब क्या होता है आर? मैंने आर इधर कहीं पे भी लिखा है। ऐश्वर्या। नो सर। हाँ तो फिर तुम आर किधर से लेकर आए हो? ठीक है, आर का मतलब क्या होता है बता दो, आर का मतलब क्या है? व्हाट इज आर? वॉट एवर यू नो टेल मी, डोंट वरी, टेल मी। कार्बोनिल कंपाउंड। आर का मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड है यार, कुछ और है? आर का मतलब क्या है पूजा? पूजा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? ऐश्वर्या अनम्यूट करो यार। यार वी आर एट द एंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार, आर का मतलब पता नहीं है। आर का ग्रुप मतलब होता है एनी अल्काइल ग्रुप। ऐश्वर्या, अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना। एनी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कौन सा होता है? मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ये जो भी हम लोग हाइड्रोकार्बन लिखते हैं ना, तो CH3, CH2, COH। तो एज ए जनरल अगर इसको मुझे कुछ जनरल अल्काइल ग्रुप मुझे दिखाना है तो हम लोग आर लिखते हैं। ठीक है ऐश्वर्या? या तुम्हें पता है या नेटवर्क का इश्यू का वजह से तुम कार्बोनिल बोला है? ऐश्वर्या, आर यू एबल टू हियर मी ऐश्वर्या? यस सर नो बोलो यार। ओके गाइस, सी हियर व्हाट हैपेंस। पूजा, आर यू एबल टू हियर मी पूजा? Okay, here what alkyl group I have given to you? R. So this is R group. Anything. So as a general हम इथाइल प्रोपाइल कोई भी कुछ भी alkyl ग्रुप लगा सकते हो। R मीन्स कुछ हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन है। सो फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी अटैच्ड है उसको। So is my voice is breaking? Vidisha, to you also. Are you able to hear? Clear? I am able to hear you, sir. Clearly, right? So Aishwarya, if you are unable to hear means your network issue is there, yes. So alkyl group, so this is what the problem. So you are understanding और क्या है alkyl group मतलब नहीं बता पा रहे हो तो क्या बताऊं मैं? So is it because of network issue or I am unable to hear और क्या है? So we are at the end of the organic chemistry. So आप लोग को इधर आना पड़ेगा। Aishwarya, you will be called here and I want you to the direct classes I want you to take. तुम्हें निखिल को मैं बुलाऊंगा इधर, ठीक है? ये क्या है इधर देखो, Br2C2H5। सो Br2C2H5 मीन्स सो सिंपल सिंपल है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो नाइट्रोजन को अटैच होता है एट द एंड। कितने क्लासेस हुआ था पूजा आज? ज्यादा हो गया क्या क्लासेस आज? सर मेरे 4 हुए सर। केमिस्ट्री का 2 एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे, नॉर्मल 2 क्लासेस है। यस सर। CS ओके। 1 सर। CS भी एक एक्स्ट्रा क्लास लिया था क्या? यस सर, सर भी डेली ले रहे हैं सर। ओके। ओके, so what is basically happening here? This alkyl group you are adding to the nitrogen, वही हो रहा है। So C2H5 का मतलब क्या है? बेसिकली 2 कार्बन है, that is only the alkyl group। CH3, CH2, NH2, this is the ethyl group आपको नाइट्रोजन। So this will be the end of the product। ये इंपॉर्टेंट होता है आपको।
So if you go by mechanism, if I write exactly, so what is basically happening in first step, what you have to do to this one, you have to put the any base like KOH and H. So due to that one, what happens to this one, this will form the anion here. This will form the N minus and K plus anion, and salts will be formed here. To this one, what you have to add now, which alkyl group, any R group. Like I have given you to write the ethyl group as a alkyl group, alkyl, ethyl. So in examination, any alkyl group they can give. What are the alkyl group? Ethyl, propyl, जो भी आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा है, methyl, ethyl, propyl, bromyl, butyl, hexyl, pentyl, octyl, all सभी alkyl groups है. उसमें alkyl groups में कुछ functional groups नहीं रहते. alkyl group मतलब carbonyl groups वगैरह कुछ मत बोलना आप लोग, ठीक है. अल्काइल ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन्स का एक हाइड्रोजन कम रहते हैं, बस उसको ही अल्काइल ग्रुप बोलते हैं. N माइनस K प्लस. सो मुझे इधर अल्काइल ग्रुप चाहिए जिसमें पॉजिटिव है. सो C2H5Br. सो C2H5Br एक्चुअली कैसे, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखूं मैं तो कैसे रहेगा, ये CH3CH2Br. सो ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है. तो ये वाला आपको इधर ऐड करना है. सो यू हैव टू ऐड CO, N, CH2, CH3. So this is how exactly it is happening. N का ऊपर ऐड हो रहा है. So अभी मुझे क्या करना है, इधर ब्रेक करना है. So I have to break here. So for that one, aqueous NaOH or aqueous sodium hydroxide, or I can take hydrogen, NH2, NH2. If I take that one, I will get simply CH3, CH2, NH2. ये वाला पार्ट मुझे पूरा मिल जाएगा. जो आपको अल्काइल हैलाइड में दिखता है उसी का एमीन बना दो. 2 कार्बन से एक उसी को एमीन बना दो, क्योंकि नाइट्रोजन हमको इधर से मिल रहा है. एंड यू गेट इन दी गैब्रियल थैलेमाइड. सो सेकंड पार्ट क्या रहेगा, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. सो हियर इंपॉर्टेंट थिंग इन दी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसाइज, यू गेट ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ओनली. आपको प्राइमरी ही मिलेगा, सेकेंडरी नहीं मिलेगा आपको. क्यों? क्योंकि इधर एक ही H रिप्लेस कर सकते हो तुम. सो यू कैन रिप्लेस ओनली 1 H विद दी 1 अल्काइल ग्रुप. अगर 2 Hs है, 2 अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो आपको सेकेंडरी मिल सकता है. सो दैट इज द रीजन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसाइज यू गेट दी प्राइमरी एमीन्स ओनली. नेक्स्ट, ammonolysis of alkyl halide. So what does it mean, that one? If you can, so directly RXi, sorry, I will take another one. So another way I will explain this one. RXi. So इसको अमोनिया ऐड किया. सो अमोनिया ऐड किया तो इसमें एक्चुअली NH3 आप 2 पार्ट्स जैसे डिवाइड कर सकते हो. NH3 को आप NH2 माइनस प्लस H प्लस. ओके, सो नाइट्रोजन विथड्रॉइंग है, सो NH2 माइनस H प्लस. इस टाइप ऑफ का भी विथड्रॉ कर सकते हो आप, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यूजुअली एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. इसमें कौन सा है, नेगेटिव पार्ट X माइनस है. सो बेसिकली एट द एंड क्या होता है, सो एट द एंड का प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं. तो ये जो RX है, आप सीधा सीधा RNH2 कन्वर्ट कर सकते हो अमोनिया डाल के. फॉर एग्जाम्पल, if I am having CH3Cl, R I have taken as a methyl group, any methyl group, plus if I react with the ammonia, so ये नंबर ऑफ कार्बन एक के साथ जो अमीन मिलेगा हमको वो लिख सकते हैं. Okay, if you want to see the mechanism and all, so you can see this one. So what is happening here, nucleophile, ammonia is a nucleophile is going and attaching here. तो उसका वजह से क्या होता है, इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. और क्या निकल रहा है इधर से, X माइनस. सो इसका पास पॉजिटिव पार्ट है, सो ये नेगेटिव पार्ट विल कम एंड इट ऐड इट एज ए काउंटर आयन. सो दिस इज कॉल्ड दी सब्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट इट विल डू नाउ, अभी इसको हम लोग क्या करना है, वी रिक्वायर्ड NH2 बेसिकली. सो NH2 कब आ जाएगा, इधर NH3 प्लस है, एक H प्लस एक्स्ट्रा है, तो मुझे H प्लस निकालना है. H प्लस निकालने के लिए मुझे क्या ऐड करना है, कोई भी बेस ऐड करना है. तो तब वो H प्लस निकाल देगा. सो लाइक दैट इफ यू ट्रीट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, so that will give the RnH2, right? So first you have to prepare the salts, then you have to treat with the sodium hydroxide. It is basically 2 steps. So एक ही स्टेप में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, अल्काइल हैलाइड डाल दिया,
तो CH3Cl वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन OH भी कर देगा इधर, सो अल्कोहल भी मिल सकता है आपको। सो पहले उसको कंप्लीटली सॉल्ट्स बना दो, देन उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेगा तो यू गेट द एमीन। ओके, so this is which amine you are getting? Primary amine, primary amine. So this point is very very important। ये जब तक हाइड्रोजन है, जब तक इसके पास हाइड्रोजन है, तब तक स्टिल इट इज बेस ओनली। ये फिर न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा, फिर दूसरा कोई भी RX है उसको ऊपर अटैक कर सकता है, ऐसे दूसरा अल्काइल भी ऊपर भी अटैक हो जाएगा वो, ऐसे तीसरा अल्काइल भी अटैक कर सकता है, लाइक दैट। So just try to understand this statement. The primary amines thus obtained behaves as a nucleophile because it is having lone pair of electrons, उसको कुछ नहीं हो रहा है, and can further react with alkyl halide to form secondary and tertiary amines, and finally quaternary ammonium salt। quaternary means जिसके पास 4 bonds है और पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। उसको अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आपको पता है NH4। सो ये H किसके साथ रिप्लेस हो रहा है? अल्काइल हैलाइड के साथ, तो इसको बोलते हैं R4N+X-, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, पॉजिटिव चार्जेस कमिंग। So basically what is happening, so for your understanding once again I will explain। so in first case RX के साथ NH2 रिएक्ट किया, RX के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग हियर, NH2। सो मुझे मिलेगा इधर RNH2, ठीक है, इसके पास है। तो फिर क्या है, RX के साथ फिर किया, रिएक्शन किया दूसरा, आई विल टेक अनदर अल्काइल। ओके, this can, for example, if I have taken methyl, this one I will take it as ethyl, another separate for example। अभी क्या करना है, इधर से एक H जाएगा, इधर से X जाएगा। हाइड्रोजन को बेसिकली क्या कर रहे हो तुम? रिप्लेस कर रहे हो। इधर NH3, it is not NH2, sorry, NH3। ओके, सो RNH2, एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर से ये अल्काइल ग्रुप जोड़ेगा इससे, सो आपको क्या मिलेगा इधर? RNH R-। क्यों? क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन को R के साथ, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली, ये वाला जाके इधर अटैक करता है बेसिकली। तो जो भी पॉजिटिव जनरेट होगा वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H+ जाएगा, दैट्स हाउ इट इज फॉर्मिंग। अभी फिर स्टिल इट इज बेस ओनली, स्टिल इट इज बेस ओनली। अगर ये फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, सो अनदर अल्काइल आई विल टेक, फॉर एग्जांपल दिस आई हैव टेकन मिथाइल, दिस आई विल टेक इथाइल, दिस आई विल टेक प्रोपाइल फॉर एग्जांपल। सो इसके साथ भी फिर से वो रिएक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या रहेगा हमारा पास? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप आएगा, सो यू विल गेट RNR-R3। मिथाइल ग्रुप इधर है, इथाइल ग्रुप इधर, प्रोपाइल जैसे एज ए, सो एनी अल्काइल ग्रुप यू कैन टेक। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट अल्काइल के लिए मैं उधर डैश बढ़ा रहा हूं बस। स्टिल ये बेस टाइप का एक्ट रहेगा स्टिल, क्यों? इसके पास अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये भी जाके फिर RX का ऊपर अटैक करेगा। कौन? ये वाला फिर से जाके RX का ऊपर, सो इधर 3 लेता हूँ कोई और इसका ऊपर भी अटैक करके ये X फिर से जाएगा। अभी क्या आ जाएगा इसका ऊपर? RN R-R2 और R3। ओके, R3 means different alkyl groups I have added। Since lone pair of electrons is adding to this one, इधर कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और इधर क्या है? X-। इसके पास और हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज में रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन चार्ज है तो क्या करेगा? H+ इसको इलेक्ट्रॉन्स देके ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो फाइनली क्या बनेगा? सॉल्ट्स बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी ammonium salts। So this is how you cannot controllably prepare this primary। if you want primary amines, you cannot controllably prepare। वो फिर से रिएक्ट करके करके आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। इसलिए द गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्टिवली यू कैन प्रिपेयर द प्राइमरी हैलाइड। This type of reaction is an example of nucleophilic substitution। This we know। Order of reactivity of alkyl halides towards nucleophilic substitution, we know that। तो अल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्टिविटी रहेगा? जिसके पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जिसको तुम ब्रेक कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल R है तो वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेगा। ओके, देन RBr, देन RCl। ओके, आई मीन, सो दिस इज हाउ इफ यू टेक दिस वन, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये 5 सेकंड में हो गया, इसके लिए शायद 1 घंटा लग सकता है रिएक्शन, इसके लिए 4-5 घंटा।
मीन्स एक दिन भी लग सकता है, लाइक दैट. सो बिकॉज इफ यू आर हैविंग द अल्काइल हैलाइड, सो न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड इजीली अटैक. सो कौन है न्यूक्लियोफाइल? जो NH2 है, ये जाके इजीली अटैक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा. ये कितना इजीली ब्रेक करेगा ये इसका ऊपर डिपेंड करेगा. सो अगर आयोडीन है, रिएक्टिविटी विल बी फास्ट. ब्रोमीन है, लिटिल बिट लेस. क्लोरीन है, और भी लेस है. इसका ऊपर ध्यान देना है आपको, ग्रेटर देन लेस देन का ऊपर. सो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग नहीं पता चलता है, दिस इज ग्रेटर देन. जो ओपन माउथ है इसका मतलब ये ग्रेटर देन. बहुत स्टूडेंट्स इसका आर्डर पूछते हैं, तो इधर लगाना ऐसे लगाना है, उनको तो पता है इसका आर्डर रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऐसे भी लगा देते हैं, थोड़ा गलत हो जाएगा. So you have to be take care that greater than less than whenever you are writing you have to take care. और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? amines can also be prepared by reacting RX with NaN3 according to the given reaction. So what is this compound NaN3? What is the name of this compound? Sodium azide. Sodium azide. ये किधर यूज किया हम लोग सोडियम आजाइड को? ये सोडियम आजाइड को पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग यूज किया. किधर यूज किया सोडियम आजाइड को? कैन एनीबडी टेल? एक प्योर कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए बेरियम नाइट्राइट, BaN3 और NaN3 आप लोग यूज कर सकते हो करके मैंने डिस्कस किया है. वो किधर है? वो कौन सा सिंथेसिस करने के लिए? कैन एनीबडी अनम्यूट एंड टेल? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग सोडियम आजाइड को यूज किया है. रोहिणी, डू यू रिमेम्बर? रोहिणी, वेयर हम लोग यूज कर सकते हैं? रोहिणी, कैन यू अनम्यूट? तुम अनम्यूट करेगा तो एग्जिट हो जाएगा. हाँ, एक प्योर गैस बनाने के लिए हम लोग बेरियम नाइट्राइड और सोडियम अजाइड, बेरियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड अजाइड बोलते हैं उसको, बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं हिंट भी दे रहा हूं आप लोग को. विदिशा, डू यू रिमेम्बर? Vidisha, if you know, yes sir, I remember. If you don't know, please tell me. I don't remember, sir. Okay, that you check it out. P block elements में किधर आप लोग यूज किया है? ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. by okay, by preparation of ammonia. चेक करो उसको. ओके, अमोनिया तो हम ज्यादा हैबर्स प्रोसेस में डाइनाइट्रोजन गैस. ओके, all of you check and please tell me in the next class. That is the in-text question. I am giving you hint that where that can be used. One of the pure gas prepare करने के लिए वो यूज कर सकते हैं. That I have asked in the examination also. आप लोग भूल गए हो, ठीक है? Okay, all of you should tell, not only one student. So that's all about this one, sodium azide. So sodium azide के पास क्या है? नाइट्रोजन है. तो ये भी N3 भी आप ला सकते हो, हैलोजन. सो दिस इज व्हाट अल्काइल हैलाइड्स बहुत वर्सेटाइल होता है. CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, C2H5Br, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. दूसरा न्यूक्लियोफाइल कोई भी वो ही चीज चाहिए तो ऐड कर सकते हो, या नहीं तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल साइनो चाहिए तो ला सकते हो इधर. आप N3 चाहिए तो ला सकते हो, आप एमीन चाहिए तो ला सकते हो. बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप्स कन्वर्ट कर सकते हो. इसलिए इधर सोडियम आजाइड के साथ रिएक्ट किया, सो इधर RN3 आ रहा है. ओके, सो RN3 इसको रिडक्शन करेंगे तो H2 इन द केस ऑफ मेटल वो एमीन बन जाएगा. ओके, नंबर. सो N3 को सीधा NH2 कर दो, हाइड्रोजन से ऐड करो N3 पे. दैट्स इट. सो व्हाट यू हैव टू डू, सोडियम आजाइड. So what else? What else which are having the nitrogen compounds? Nitro compounds, nitroalkane. For example, nitroalkane is there. Nitroalkane is there. Okay. If you do the reduction of nitro compounds, which can be best performed with the lithium aluminum hydride. So lithium aluminum hydride लेके आप reduce करेगा तो ये NO2 को सीधा NH2 कर देना. So by taking the nitro compounds also, you can do this reaction. I mean, so number of carbons same रहेगा, सिर्फ NO2 को NH2 कर दो. ठीक है? So like that you can do. If it is the aromatic is there, अगर aromatic nitro compound है, this will useful in the organic conversion. You can use ZnCl2 plus HCl or SnCl2 HCl or iron FeHCl. Okay, zinc HCl like this.
अगर इस टाइप ऑफ का यूज करेगा तो आपको एमीन मिलता है एरोमेटिक। ओके, LAH लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हो, बट इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इधर थोड़ा इजी रहेगा इस केस, बिकॉज दीज आर आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको डिस्कस किया ऑलरेडी। अगर बेंजीन टू एनिलीन पूछे आपको एग्जाम में, बेंजीन टू एनिलीन पूछे तो आप क्या कर सकते हो, इसको नाइट्रेशन करो, HNO3 H2SO4 NO2 लाओ इधर, इसको रिडक्शन करो बाय पुटिंग द लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये रिएजेंट्स भी डाल सकते हो। So that's how you can do that one. So by taking the nitroalkanes, if you do reduction, you will get this compound. Okay. So this is what I was saying. What it is, even palladium, by taking the not only that one, palladium and hydrogen, because आपको ultimately hydrogen you have to bring here. So this is one of the best reagent. इसको लेके in the presence of alcoholic solvents prepare करते हैं reduction का नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन करने के लिए। Okay, the same way here also. This is wrong. NO2. Okay, NO2. Essential, just now as I said, essential to HCl are simple metal, Sn plus HCl, zinc HCl, FeHCl. Okay. So what is the name of ZnCl to HCl reduction? What is the name of this reagent? कौन सा रिडक्शन में यूज किया हम लोग? क्लेमेंसन रिडक्शन। What it is? क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है। नॉट ओनली दिस वन, ये नाइट्रो ही नहीं है, ये मेनली किधर यूज करता है इसको? C डबल बॉन्ड वो को डायरेक्टली CH2 करने के लिए। अगर इस ग्रुप को आपको CH2 लाना है तब ये रिएजेंट्स यूज होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर आप दूसरा LAH वगैरह यूज करो तो आपको अल्कोहल मिलता है। डोंट गेट कंफ्यूज, सोडियम बोरोहाइड्रेट, LAH लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट वगैरह यूज करेगा तो आपको अल्कोहल मिलता है, आपको CH2 नहीं मिलता है। CH2 आपको एसिड का जगह मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन में मिलता है। टेक केयर ऑफ दैट वन। और नाइट्रो टू NH2 करने के लिए दिस इज द best reagents, H2 palladium. Okay, this reduction can also be carried by passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel catalyst or palladium or platinum, and also by the reduction with metals in acidic medium. So you can see acid, HCl, metals, Sn, iron, zinc. By taking the type of one you can do. Okay, that's how it is. Now this is all about the synthesis. Now we will see the physical properties. Physical properties in the sense what? Boiling point, what happens to the boiling point, what happens to the solubility, all these things we will see. Okay, lower members are in gaseous form, that we know that, because in every case that is how that only, because molecular weight when that is come low, so that will have the lower boiling point, that means that gases will have. But as molecular mass increases, which number of carbons are increasing, compounds exist in liquid form. Higher members are solids. If the number of carbons are increasing, that will form. Lower members have pleasant smell. Lower members have pleasant smell, while higher members have fishy smell. Okay, like methylamine, ethylamine, this type of compounds will have pleasant smell. But higher number, for example, another alkyl group, like for example CH3, CH2, 10, CH2, NH2, like this type of compounds are there, higher number of, so that will have fishy. Even aromatic amines also fishy, जैसे ड्राई फिशेस रहते हैं ना, ऐसे वो स्मेल आता है. Boiling points, regarding the boiling points, it can form hydrogen bonds because nitrogen is a withdrawing group, electron withdrawing nature it is. Now this can form the hydrogen bonding with the other molecules. Compared with ether, compared with the alkyl halides, compared with the hydrocarbons, this will more. But compared with the alcohols, it will be less. It will be less because polar. Compared with the oxygen, nitrogen में कौन सा more polar है? Oxygen more polar है. ये withdrawing ज्यादा है. So इसमें hydrogen bonding ज्यादा रहते हैं. But this also can form nitrogen and oxygen, and even fluorines also can form the hydrogen bondings much. First degree, second degree amines have capability to form hydrogen bonding. Okay, because those are having amines, hydrogens. That's why first degree and second degree amines have high boiling point, but tertiary amines have low boiling point. So why? Because tertiary amines के पास hydrogen ही नहीं है. You can see सभी alkyl groups है, तो alkyl groups ही है, इसके पास hydrogen absent है, तो hydrogen bonding that cannot form. That means that compared with first degree and second degree,
boiling point will be decreased. Okay, amines have low boiling point, then corresponding alcohols and acids. Compared with acids, alcohol it will have lower boiling point. So in the examination, they will compare alcohols will give, acids will give, amines will give. So like that also they will ask in the comparison. Or from same chapter also they will ask they will give the a different type of amines and they will, for example, first degree amine, second degree, tertiary they have given you. So tertiary will have lesser. Okay, corresponding alcohols and acids because of low polarity of NH bond means इसका withdrawing nature कम है ऑक्सीजन से, so ये इतना easily break नहीं हो सकता, इतना towards nitrogen नहीं है. That is the meaning of polarity. Sharing of electrons not that much towards nitrogen as like oxygen. Okay, next solubility. And that's obvious that hydrogen bonding is there, so that can be water soluble. As we know, amines can form hydrogen bonds, therefore lower amines are soluble. It is every case in every chapter you are reading. Number of carbons, if it is increasing, that hydrophobic nature will increase, the solubility will decrease. As molecular mass increases, hydrocarbon chain increases and hence solubility becomes lower. It is common from the each and every chapter. Therefore higher members are less soluble in water but highly soluble in non-polar solvents like it. So for example, higher number of carbons are there that can be soluble in the organic solvents like ethers, acetone, benzenes, that type of. Okay, this is how, this is the amine, primary amine. So this is the water. Water के साथ क्या करेगा वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं. देन दिस इज द सॉल्युबिलिटी. वाटर के साथ है सॉल्युबिलिटी सेम, दूसरा एमिन्स के साथ अगर है तो क्या है वो एक दूसरे के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं. सो व्हाट डज इट मीन? बॉइलिंग पॉइंट यू आर कंपेयरिंग. Okay, this is all about the physical properties. Next, chemical reactions. Next, chemical reactions. So chemical reactions, what we do. Okay, so this we will discuss in the next class. Chemical reactions we will discuss in the tomorrow. 2 classes are there. All chemical reactions will be completed tomorrow. I will complete the chemical reactions and basicity. So tomorrow maximum will be covered. So basicity and chemical reactions, if once that is covered, so diazonium, second part of the chapter, that is the diazonium salts, will not asked in the examination. So that I have posted here your in NCERT. Okay, here it is there. Let us check what you know need to read. Okay, in the notes, some regarding quaternary amines and isomerism, it is also given because that is useful for your your IIT exams and NEET exams. So that's how it is there. It is not there in syllabus. You no need to write in notes also. So till the in-text questions, till preparations, you have to write it is. So ammonolysis we have studied like quaternary ammonium salts. So if anything, oh no, what happened to this one? Okay, all this in class notes, all the tables you have to write from each chapter. The table should be there, IUPAC table, because in the notes it is not completely given. Okay, this we have discussed, reduction of amides by using lithium alumina. So Gabriel phthalimide synthesis. So like this you can, if it is in notes, if you are getting confused, so by taking the reference, this you can write. Hoffman bromide reactions we have discussed it is. So till here in text questions you have to complete. Examples 13.3 you have to complete. So physical properties anyhow we have discussed. So chemical reactions we will discuss. Okay, so this table you can compare physical properties. 2 or 3 questions will be confirmed. Okay, basic character and chemical reactions, all these will be basicity related questions are compulsory in this one. So what is that basicity? We will try to understand what happens when withdrawing group is there and donating group is there. That related questions we will solve. And so if we complete the reactions of chemical reactions, so all this and electrophilic substitutions will be there, that anyhow that you can write yourself. So this you no need to read. Diazonium salts ये syllabus से निकाल दिया. ये जो second portion है diazonium salts, this you no need to study. You have to take care of that one. आप इसको notes में भी लिखने का जरूरत नहीं. ये सभी methods of preparation. Okay,
but you can go through that one. Organic conversions में बहुत काम आ जाएगा. So tomorrow I will see chemical reactions we will discuss tomorrow. Okay, that's how I will try to cover the syllabus tomorrow of the nitrogen compound, and biomolecules we will start the in next week only. Okay, if you are having any doubt you can ask me, otherwise you can go. Thank you, sir.